Hello friends, today I'm going to teach you chapter number 1, History, class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. Before starting this chapter, I'm going to talk about history help us understand the world and history help us judge wisely. So history is interesting. So I'm going to talk about the first chapter name is I'm talking about here the rise of nationalism in Europe. So let's get it started. This is Rakesh Kesri, and today I'm going to uh, revise quickly of this chapter. So let's get it started. So his history repeats itself. So I'm going to talk about the next nationalism. So what do you mean by nationalism? Nationalism is a devotion to one's nation. It means patriotism. So patriotism means we can say that just like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Khudiram Bose, these all are a uh, they have a patriotism and they all are great patriot, we can say that. So I'm going to talk about the next if you look today Europe, you will find that France, Germany, and Spain. So these all are. But if you see the Europe of 1850, 50, so you can say that these all are divided into the provinces. It means the kingdom, duchies, and cantons. Kingdom, duchies, and cantons. So I'm going to talk about the next here. So once again here what topic I'm going to cover here right now. The first topic is we will talk about introduction. So already just I have told you. The second topic, the French Revolution, and next one, the making of nationalism in Europe, and the third one, the age of revolutions, 1830 to 1848, and unification of Germany, Italy, and Britain, visualizing the nation, and nationalism and imperialism, and after that, the end here right now. So I'm going to talk about the next topic here. I'm going to cover right now. So let's get it started. So first of all, I'm going to talk about the French Revolution. So French Revolution started in 1789. So before starting French Revolution, who ruled in the France? So you know that there are provinces, and that these all provinces divided into the kingdom, duchies, and cantons. Uh, these all ruled by the king that I'm talking about in the France, 1774. The king was Louis XVI. So, which was the first expression of nationalism in Europe? It means 1789 जो हमारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्रेस किया गया जिसमें नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया गया. So next I'm going to talk about here फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच पीपल डिमांडेड करने लगे कि भैया अब एबॉलिश कर दिया जाए किसको मोनार्की सिस्टम को एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. भैया मोनार्कल सिस्टम क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिप्रेसिव है टैक्सेस ज्यादा मतलब ले रहा है किसानों से मतलब कहीं ना कहीं स्थिति बदतर होती जा रही थी. सो लोगों ने डिमांड किया कि डेमोक्रेसी ला दिया जाए. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट so what steps taken during the French Revolution I'm going to talk about here right now. So the first step I'm going to talk formation of National Assembly. It means general state renamed कर दिया गया by the name of National Assembly. So the second one I'm talking about French was made the official language, and third one construction of uniform law. It means the law should be equal for everybody. मतलब जो नियम बनाया जाएगा सबके लिए समान होगा. So next one I'm talking about for abolition of internal custom duties. जो internal custom duties था उसको abolish कर दिया गया. ठीक है मतलब खत्म कर दिया गया. So next I'm going to talk about here फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले ये बातें देखने को मिला हम लोग को. देख सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की भावनाओं को सपोर्ट करते हैं इसलिए उन्होंने क्या बना दिया एक जॉकबिन्स क्लब बनाया. हियर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू एवरीबॉडी. You know that the leader of Jacobin clubs, Maximilian Robespierre. You might have known about this. So next I'm going to talk about
Here French Revolution. So the French Revolution in the that school college just here we know, but French army moved to the foreign lands to spread the idea of nationalism. It means फ्रेंच की जो आर्मी थे दूसरे फॉरेन लैंड में भी जाने लगे और नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे. सो नेक्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. अब उसके बाद क्या होता है, रूल ऑफ नेपोलियन 1804 टू 1815 आ जाता है, जिसमें नेपोलियन का ड्रीम था कि भैया मैं पूरा यूरोप पर कब्जा करूं. सो नेक्स्ट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इन द नेपोलियन नेपोलियन era just year 1804 to 1815. Napoleon abolished the democracy and re-established the monarchy. नेपोलियन आकर क्या कर देता है, डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो डेमोक्रेसी नेशनलिज्म की भावना इंकलकेट किया गया था चारों तरफ, उसको खत्म कर देता है और दोबारा से स्टैब्लिश कर देता है मोनार्की को. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियनिक कोड बनाता है, जिसको नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड भी बोला जाता है 1804 में. अब देखिए इसमें क्या करता है, फर्स्ट नंबर में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है कि सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी, सबको अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का. एंड द नेक्स्ट वन एबोलिशन कर दिया गया, ठीक है, फेडरल सिस्टम को. फेडरल मतलब जो टैक्सेस दिया जाता था उसको खत्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रूल ऑफ नेपोलियन 1804 टू 1815 में. और क्या करता है ये, ट्रेड जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार और जो यातायात की साधन और कम्युनिकेशन जो होता है उसमें डेवलपमेंट कर देता है उस एरा में, ठीक है. अब क्या होता है नेक्स्ट कि फ्रेंच आर्मी जो होते हैं कॉन्क्यूर करने लगते हैं सम फॉरेन लैंड्स को, और वहां पर क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं टैक्सेस, सेंसरशिप बढ़ा देते हैं, सेंसरशिप बढ़ा देते हैं, सेंसरशिप ला देते हैं. अब लोगों को बोलने और मतलब लिखने के लिए या प्रचार करने के लिए वो लोग मना करने लगते हैं, और फ्रेंच आर्मी क्या करने लगते हैं, इनटू द फ्रेंच आर्मी वर सीन इन द नेगेटिव इम्पैक्ट, और लोगों को क्या करते हैं, बरियारी फोर्स में ले जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बातें करेंगे हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब कैसे भैया नेशनलिज्म की भावना आया यूरोप में वो भी देख लेते हैं. अब डिफरेंट सोसाइटी जो था, डिफरेंट सोसाइटी इन द यूरोप. अब हम सोसाइटी की अगर बात करें तो मेकिंग और नेशनलिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, जिसमें से लिबरल, नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिज्म और रिवोल्यूशनरी. चलिए वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले मैं बात करूं 19th सेंचुरी से पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी था, दो कैटेगरीज में था. एरिस्टोक्रेसी में था, सेकंड पीजेंट्री में था. एरिस्टोक्रेसी में लेस पॉपुलेशन वाले लोग रहते थे, पीजेंट्री में ह्यूज पॉपुलेशन मतलब ज्यादा जनसंख्या था. इसमें हाई क्लास डोमिनेटेड थे, इसमें लो क्लास पीपल थे, ठीक है. इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जमीन ज्यादा था इन लोगों के पास, इन लोगों के पास जमीन नहीं था. ये लोग टीनेंट्स का काम करते थे, बंधुआ मजदूर के तरह, और इनके पास अधिकार थे एरिस्टोक्रेसी के पास. और इनके पास एरिस्टोक्रेसी भैया जो उच्च रैंक वाले जो लोग होते थे, वेल्थ से, शिक्षा से, ठीक है, उनको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता था. सो नेक्स्ट वन, आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद क्या होता है, फिर एक नया क्लास आ जाता है इंडस्ट्रियल के द्वारा, जिसमें से जिसका नाम था न्यू मिडिल क्लास. अब क्या होता है, ये एजुकेटेड पॉपुलेशन होता है, जिसमें से डॉक्टर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, और ये डिमांडेड करते हैं लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब इसमें डिमांड में क्या क्या चीजें रखते हैं कि भैया इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना, हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है. और नेक्स्ट देखिए क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, ठीक है. एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी जो गवर्नमेंट मिलना चाहिए, बनना चाहिए भैया, वो चुनाव से होना चाहिए, कंसेंट यानी कंसेंट से होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ मार्केट मिलना चाहिए. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिबरल नेशनलिज्म जो होते हैं, वो जलवॉरिन एक प्रकार का कस्टम यूनियन था, उसको फॉर्म करते हैं 1835 में. इसमें क्या करते हैं, जो टैक्सेस होता है, टैरिफ बैरियर, उसको मतलब माफ कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं. और इन्होंने क्या कर दिया, 28 करेंसी क्या कर दिया, 30 में से खत्म, यानी करेंसी का जो देते थे लोग 30, उसको अब 2 कर दिया ये लोग, ठीक है. जलवॉरिन जो कस्टम यूनियन जो बनाया गया, किसके द्वारा, आप देख सकते हैं हियर, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा. नेक्स्ट मैं बात करूं कि लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ड्यूरिंग नेपोलियन रूल, ओनली मेन विद प्रॉपर्टी वर अलाउड टू वोट, मतलब जिसके पास केवल प्रॉपर्टी होता वही वोट दे सकते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होता था वोट नहीं देते थे.
जिसमें से वुमेन लोग भी मतलब बहुत ज्यादा क्या करती है, कंपेन करती है, प्रोटेस्ट करती है इसके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अब कंजर्वेटिव लोग आ जाते हैं। लिबरल के बाद अब कौन लोग आते हैं, कंजर्वेटिव लोग। ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया, जिसमें से रशिया और ब्रिटेन के जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, राजा महाराजा, वो मिलकर किसको हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में 1815। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारा है कंजर्वेटिज्म में इन्होंने क्या कर दिया, यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये लोग चाहते थे कि हमारे पुराना जो परंपरा वाले जो इंस्टीट्यूशन, संस्था है, सोसाइटी है, उसको बचाए रहे। और यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना होता है, साइंड 1815 में। अब देखिए ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या होता है कि अब ये लोग ना, कंजर्वेटिव लोग क्या क्या करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में, इन्होंने क्या कर दिया, एस्टैब्लिश द स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैन बी एक्सपेंड इन द फ्यूचर, ताकि आगे जाकर एक्सपेंड ना हो, इसलिए ये लोग क्या कर दिए, बॉर्डर एस्टैब्लिश कर दिए फर्स्ट में। सेकंड में ये लोग क्या कर दिए, रिस्टोर द बॉर्बन डायनेस्टी, मतलब पुराने जो 1774 में जो राजा महाराजा का नियम चल रहा था वही ला दिया। और थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन द फ्रांस, यानी कंटिन्यू चालू कर दिया गया, मोनार्की ला दिया गया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, कंटिन्यूइंग आई एम टेलिंग दैट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, अब रिवोल्यूशनरीज आ जाते हैं। देखें, लिबरल आते हैं, लिबरल के बाद कंजर्वेटिव आते हैं। अब रिवोल्यूशनरीज का क्या डिमांड होता है, इनका एम होता है सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा कि भैया स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, मतलब हम कौन सा चीज फैलाएं, नेशनलिज्म की भावना, और अपोज करने लगे ट्रीटी ऑफ वियना, क्योंकि ये क्या कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था राजा के पावर को। एंड फाइट फॉर फ्रीडम, ये लोग किसके लिए मतलब लड़ते हैं, फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अब रिवोल्यूशनरीज में एक हमारे बहुत ही चहेते आते हैं, हमारे रिवोल्यूशनरी 1804 में, जिनका नाम रहता है गुसेप मेज़नी, जो है इटालियन रिवोल्यूशनरी होते हैं। ठीक है, जो फाउंडेड यंग इटली, जो मार्सलिस में, जो फ्रांस का एक सिटी है, और यंग इटली जो बर्न में है, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें से दो यंग इटली और एक यंग यूरोप था। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, और इसमें क्या होता है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने लगता है, जिसमें स्ट्रगल होता है, इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर, 1821 में, ग्रीस में। ड्यूरिंग द ग्रीक वार पब्लिक गॉट सपोर्ट, पब्लिक को सपोर्ट मिला था कहाँ से, ग्रीक से एंड वेस्टर्न यूरोप से, आर्टिस्ट से, पोएट से। ये मतलब क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे थे कि ताकि क्या हो जाए, ग्रीक इंडिपेंडेंस हो जाए। अब देखिए ग्रीक क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस कब होता है, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइंड किया जाता है 1830, उस समय ग्रीस को क्या कर दिया जाता है, ग्रीक को इंडिपेंडेंस घोषित किया जाता है, ग्रीस वाज डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंस नेशन, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म क्या है, अ कल्चर मोमेंट दैट रिजेक्ट द नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन, मतलब अब क्या करते थे कि जो रोमांटिसिज्म वाले लोग थे, साइंस और रीजन को मतलब रिजेक्ट करते थे, मतलब उसका विरोध करते थे। वो चाहते थे कि भैया अगर नेशनलिज्म की भावना अगर फैलाना है तो आर्ट, म्यूजिक और लव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोगों में वर्ड नेशनलिज्म की भावना को फैला सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इकोनॉमिक हार्डशिप में, तो द ईयर ऑफ 1830 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब 1830 जो था ये ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें क्या क्या कारण हुआ हार्डशिप से, इंक्रीज पॉपुलेशन, मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ गया, माइग्रेशन, मतलब लोग माइग्रेट होने लगे, रूलर जो थे, मतलब गांव से शहर की ओर जाने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, इंक्रीज इन पॉवर्टी और इंक्रीज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू द क्रॉप फेल्यूर। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन द पॉवर्टी, ये सब होने लगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक हार्डशिप में। अब क्या होता है कि जो पीपल होते हैं स्टार्ट प्रोटेस्टिंग विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट, अब लोग क्या करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिससे रिपब्लिक गवर्नमेंट बन जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक हार्डशिप में। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनता है अभी 21 ईयर्स के लोगों को वोटिंग राइट दे देता है, राइट टू वर्क दे देता है सबको, नेशनल वर्कशॉप जो होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब बना देता है उसमें। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, ठीक है,